وقت میں موجود ہوں ریڈ زون میں اسلام آباد کے، اور سامنے اگر آپ کو نظر آئے کیونکہ سورج کی روشنی ہے تو سامنے کنٹینرز لگے ہیں، اس پار ڈی چوک ہے جہاں پر کچھ 100 مظاہرین پاکستان تحریک انصاف کے پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس وقت وہاں پر شدید شیلنگ چل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے، بڑے اوتھینٹک سورسز نے بتایا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین ہیں ان میں شر پسند عناصر بھی موجود ہیں، ان کے پاس غلیلے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس لوہے کے ڈنڈے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان مظاہرین کے پاس اور ان جو شر پسند عناصر ہیں ان میں موجود ہیں، ان کے پاس امریکی ساختہ شیل بھی موجود ہیں، اور وہ اس طرف سے بھی پولیس پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، رینجرز پر، پاکستان آرمی پر شیلنگ کی گئی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کی ہے۔ ابھی اس ویڈیو کے ریکارڈ کرنے سے کچھ منٹ قبل وہاں پر فائرنگ ہوئی، اور اس کے بعد پاک فوج کا ایک دستہ یہاں پارلیمنٹ کے باہر جو موجود تھا پھر وہ اس طرف روانہ ہوا۔ یہاں کی اگر بات کی جائے تو اس وقت بیلاروس کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہے۔ بیلاروس کا تقریباً 8 وزراء اور 60 افراد سے زائد کا جو وفد ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کا جو انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکل رہا ہے اس میں یہ بھی جو بیلاروس کے وفد کا دورہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے بات کرتے ہیں۔ طیب بلوچ، یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے شروع میں یعنی کہ 26 نمبر ہو گیا، ٹول پلازا ہو گیا، وہاں پر G15 سائٹ میں، ان سب جگہوں پہ کنٹینرز لگائے گئے تھے اور پورے اسلام آباد کو بلاک کیا گیا تھا، انٹرنیٹ سروسز معطل تھیں۔ یہ افراد یہاں پر پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ اور ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں تو ساتھ ہی انٹرنیٹ کی جو سروسز تھی وہ بھی ان کی وہ کہتے ہیں وہ جو سسپینڈ کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی، ٹویٹر جو ہے وہ بغیر وی پی این کے چلنے لگا۔ بشرا بی بی پہنچ چکی ہیں ڈی چوک، کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو ہم نے 26 نمبر سے آگے نہیں آنے دینا۔ پھر رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی، مذاکرات ناکام ہوئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ G11 G10 پہنچ گئی، تو پھر یہ کہا گیا کہ ان کو G10 پر ہی ہم روک لیں گے، یہ آگے نہیں آئیں گے، لیکن اب وہ ڈی چوک آنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف ڈیلیگیشن ہے بیلاروس کا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ اتنی تمام تر اقدامات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص ان مظاہرین میں جب شر پسند عناصر ہوں، کچھ کے چہرے جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہے تو شکلوں سے لگ رہے تھے، وہ بھی موجود ہے یہاں پر، یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی، بے شک حکومت وہ چیز ہے جس پہ آپ کوئی بھی ملبہ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنا چاہیے۔ جو انٹرنیٹ والی آپ نے بات کی ہے وہ تو فائر وال کبھی ایکٹیو ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ہم نے دیکھا وی پی این عام یوز میں بھی، اس میں بھی کبھی ٹویٹر بغیر وی پی این کے چلتا ہے، کبھی فائر وال بھی پریشان ہو گئی ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اصل معاملہ جو آپ نے جس طرح توجہ دلائی ہے، کتنی رکاوٹوں کے باوجود یہ یہاں تک کیسے پہنچے، یہ بڑا ایک میننگ فل ہے کہ یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس ناکام ہو گئی ہے، انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے، یا ان کی جانب سے جو بندوبست کیا گیا تھا وہ بندوبست ناقص تھا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پسپائی اختیار کی ہو انتظامیہ نے، کیونکہ وہ دیکھیں وہ ڈو اور ڈائی پہ تھے، وہ مرنے مارنے پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مارا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کا پرتشدد واقعات، دہشت گردی والے جو انہوں نے دہشت گردانہ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کی ہے اٹک میں، وہ ہم نے دیکھی ہیں۔ 100 سے زائد اٹک میں پنجاب پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ایک وہاں پہ شہید ہو گیا تھا، میرے علاقے کا ایک پولیس اہلکار تھا پنجاب سے، ٹھیک ہے، مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کا، وہ وہاں پہ شہید ہوا۔ تو ان کے پاس اچھا ہو کیا رہا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل کارکن بہت کم ہے، ان کے ساتھ
वो ट्रेड याफ्ता लोग बहुत ज्यादा है। अब उसमें ट्रेड याफ्ता आप ये भी कह सकते हैं, मैं इस पे मुझे शक पड़ रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लोग भी शामिल होंगे जो सिविल यूनिफॉर्म में है। अच्छा, उनके पास जो वेपन्स है वो खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी वेपन है, पुलिस का वेपन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास जो अब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अगर उन पर एक शेल फेंका जाता है ना, तो वहां से वो 3-5 शेल फेंकते हैं और वो शेल जो है वो इनसे ज्यादा वो होते हैं, अमेरिकी साख्त है, अमेरिकी साख्त है, उनका असर यहाँ के लोकल शेल से कहीं ज्यादा है। तो अब इसका मतलब ये है, अच्छा फिर वो सीधी गोलियां चलाते हैं। भाई ये तो मोहसिन नकवी कह रहा है कि हमने तो अपने बंदे बचाए हैं, वरना इन पुलिस वालों को मार देते। उनके सामने जो भी रुकावट जो सीधे फायर कर रहे हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, उनका काम था लाशें गिराना। तो ये तो इनकी स्ट्रेटजी थी, इन्होंने कहा कि यार ठीक है भाई आ रहे हैं तो आने दो, रुकावटें अगर हटा लेंगे तो ठीक है। इन्होंने वो ज्यादा उस पर स्ट्रिक्ट नहीं किया, उनको मुजाहमत ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि उनके पास दहशतगर्द लोग शामिल हैं, इंतशारी शामिल हैं, आग लगाते हैं। 22 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई। तकरीबन पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को मिला 200 से ज्यादा जख्मी हुए, 5 रेंजर एहलकार जो है 4 और एक पुलिस वाला वो भी जो है शहीद हुए। तो उनके पास तो ये सारी चीजें अभी भी देख रहे हैं कि ये डी चौक है, ठीक है। अब मैं उसके पास खड़ा और मुझे खांसी आ रही है और आंखों पे असर पड़ रहा है उस शेलिंग के असरात की वजह से, इतनी एक्सटेंसिव शेलिंग हो रही है। अब वो जो शेलिंग फेंकी जा रही है, अब उसमें इस्लामाबाद पुलिस अगर वही है 2 या 10 शेल फेंके, वो 30 से 40 शेल पुलिस पे फेंकेंगे और इतने खतरनाक शेल है कि शायद पुलिस के पास उसका तदारुक भी नहीं है। और ये वाहिद जमात है जो सियासी जमात होने का दावा करती है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों पे बिल्कुल उसी तरह हमले कर रही है जिस तरह के फितनतुल खवारिज करते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप इसका दूसरा एंगल देखें, ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये भी डी चौक है बेसिकली, ये रेड जोन वाली साइड है डी चौक की, ठीक। और वो जो है वो डी चौक ब्लू एरिया वाला है, वहाँ ब्लू एरिया का स्टार्ट है। एक कंटेनर की बहुत बड़ी वाल है। अब जो 26 नंबर से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितने कंटेनर हटा चुके हैं, ये कंटेनर भी मैटर नहीं करते। और सामने एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, ठीक है, छोटा तो नहीं, वो तो बड़ा है, लेकिन कंटेनर के सामने गेट तो कुछ नहीं है, कंटेनर के सामने आसानी फलांगा जा सकता है, ठीक है। अब ये 200-250 मीटर का फासला बनता है और मुजाहिरीन और हमारा, ठीक। अब आप बैक साइड पे देख के दिखाएं कि ये देखें, ये बैक साइड पे आपको जो है वो झंडे अवेदा नजर आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान और बेलारूस के, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनें लगी हुई हैं, पूरा एक इस्लामाबाद को और खासकर रेड जोन को जो है वो खूबसूरत बनाया गया है, सजाया गया है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए। बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो अपने 8 वज़रा को हमरा लेके तकरीबन 70 से 75 रुकनी उनका वफद है, हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स है, ठीक है, मिनिस्ट्रियां हैं। और उनका मकसद ही यहाँ पे था कि पाकिस्तान के साथ जो बेलारूस की म्यूचुअल या बैमी पार्टनरशिप है उसको वुसअत दी जाए। दोनों जो हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर हैं, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट्स होने हैं, अब बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब वो चीजें मगरब को शायद पसंद नहीं है। बेलारूस जो है वो रूस से उसका बेसिकली रूस बेलारूस सेम कंट्री है, ठीक है, एक दूसरे के साथ हैं और उनकी पार्टनरशिप और सारा कुछ। तो यूं आप समझें कि ये मगरबी इस्तेमाल इसको पसंद नहीं करता। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट होता है तो तहरीक इंसाफ के शर पसंदों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और वो ऐसी कार्रवाइयां करते हैं कि जो है वो ऐसी कार्रवाइयां करते हैं कि बर्दाश्त से जो है वो बाहर हो जाती हैं। और उनका मकसद ये होता है कि इन सारी चीजों को डिरेल किया जाए। अब ये जितने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इनसे यानी बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है ना, कि ये बेलारूस का प्रेसिडेंट क्यों आया, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बेलारूस के साथ कितनी वुसअत पा रही है। एनडीए में और बेलारूस की वजारत का एग्रीमेंट हुआ, वजारत तिजारत और बेलारूस की एंटी मैनिपुलेशन जो रेगुलेशन है उसके दरमियान एग्रीमेंट हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी को रोकने। तो मुतअद्दिद ये वुसअत है।
पार्टनरशिप है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही। और तरीके इंसाफ पे यही एलिगेशन है कि जब चीन के सदर ने आना था उसने यही किया, शंघाई ताउन तंजीम को रोकने के लिए उन्होंने यही कुछ किया। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं तो इसी को यही समझता हूँ कि इस एहतजाज के पीछे रीजन यही है, वरना इंतजामिया ने इनको कहा कि हम आपको कोई न्यूट्रल प्लेस दे देते हैं, जब तक 3 रोज तक वो विजिट है आप यहाँ पे ना आए, विजिट हो जाए, सदर साहब चले जाए, उनका डेलीगेशन चले जाए, फिर आप बेशक डी चौक पे 6 महीने के लिए बैठे रहे, कोई मुज़ाहरा नहीं है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मानी, तो इसका मतलब है उनका मकसद कोई ना कोई तकरीब कारी और फितना फसाद करना है, ताकि पाकिस्तान को आलमी तौर पे कोई सबकी का सामना करना। अच्छा, अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे इमरान खान से और कोई फिर से मुज़ाकरात का एक दौर शुरू होगा। लेकिन ये लॉलीपॉप है जी, बात ये है मोहसिन नकवी ने कह दिया ये किसी की बात को नहीं मानेंगे। जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है यहाँ, तो बैरिस्टर गौर सब चाहते हैं कि भाई वो समझते हैं कि ये बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है, ये मामलात हैं, ये इस तरीके से ना चलें, इनको जो है वो हम मुतबादल जगह। लेकिन वो अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स नहीं मान रहा, या उसकी जो बीवी है बुशरा बीबी वो नहीं मान रही। अब तो वो डी चौक के करीब आ चुके हैं, तो आप क्या समझ रहे हो, किस्मत इख्तियार करेंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे, उनके एजेंडे और है। उनका एजेंडा मैंने आपको बता दिया, बेलारूस के सदर का विजिट जो है इस पे बुरा असर डाल रहा है। अच्छा, साजिशी थ्योरियां भी बहुत बिकती है ना यहाँ पे इस्लामाबाद की मार्केट में। एक साजिशी थ्योरी अब ये चल पड़ी है कि इनको डी चौक पहुंचने की इजाजत दी गई है और ये एक तासुर दिया गया है कि बुशरा बीबी कामयाब हो गई है, ये एक तासुर दिया गया है। मुझे तासुर से नहीं पढ़ना भाई, वो कामयाब हो गए हैं, वो आ चुके हैं, उनके पास जो स्ट्रेटजी थी, जो चीज थी, ठीक है, उनको मुज़ाहमत नहीं करनी पड़ी। अब एक ये थ्योरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान जो है वो बुशरा बीबी के हाथ में दे दी जाए और फिर इस तरह से पीटीआई को मैनेज किया जाए। क्या पीटीआई को, बुशरा को मैनेज आप कर सकते हो? कौन कर सकता है? बुशरा को कहते हैं वो डील के तहत आई है, जो भी तरतीब हुई है, तो बुशरा तो यहाँ तक लेके आई है। अगर बुशरा उनके हाथ में होती, जो भी है, अगर कहीं ना कहीं को डील का भी अनसर है, कम से कम 3 रोज तो बुशरा को कहीं पे स्टे करवा सकते थे कि 3 रोज के लिए आप ना आए, ये सदर साहब चले जाए, उसके बाद बेशक आप आ जाए। बुशरा ने तो वो भी बात नहीं मानी, तो मैं इसको क्या कहूँ, ये सब बातें हैं और उन्होंने कहीं कुछ नहीं मानना। उनका काम है, उनका जो मकसद है, वो जो उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, इसी चीज में मिलती है, पाकिस्तान में फितना फसाद करो और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो नाकामी का सामना हो। तो इसी वजह से वो इस हद तक, काफी हद तक तो कामयाब हो गए। सिर्फ 200 मीटर का फासला है और वो जहाँ पे बेलारूस का प्रेसिडेंट ने स्टे किया हुआ है तकरीबन 500 मीटर का फासला मुश्किल बनता है। तो कुछ भी हो सकता है, बहरहाल अल्लाह जो है वो हमें ऐसे किसी बड़े सानियत से बचाए। बिल्कुल, इमरान खान जो बात करते हैं कि उनकी 22 साल जद्दोजहद है, लेकिन होगी 22 साल जद्दोजहद, लेकिन वो सियासी तौर पर नाबालिग है। अहम डेलीगेशन है। जब मुल्की तरक्की की बात हो, मुल्की मफाद की बात हो, तो सियासत को मेरे ख्याल से एक साइड में रखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की दी गई पेशकश के संजानी में आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लें, इसको कबूल करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का तर्ज ही रहा है कि उसमें जब हम आखिर में देखते हैं तो वो फिर मुल्क दुश्मनी का हमें उसमें एलिमेंट नजर आता है।